Our personal agility and resilience are key to not just surviving but doing well in such a world. A very warm welcome to each one of you present here to this remarkable event organized by our DME Mentoring Cell and Meraki Club in collaboration with DME Management School. With immense pride, our mentoring cell is an exceptional support system designed to empower students and foster their growth. The mission of mentoring cell is to provide students with a tool and the guidance that they can navigate the challenges that are occurring in college life. Whereas at Meraki's Club, we are passionate about promoting mental well-being and creating a supportive community for all students. We have with us Dr. Swati Jain ma'am, Head of Mentoring Cell, and Ms. Priyanshi Jain ma'am, Head of Meraki Club. We welcome you ma'am. Today we are gathered here to shed light on the topic of utmost importance, personal agility and resilience in an ambiguous world. Guest for today's event is Dr. Tazian Rahman. We welcome you ma'am. She is an impressive academic background and extensive experience in the field and holds PhD in Commerce from CCS University, Meerut and an MBA with a specialization in HR and Marketing from Guwahati University. With over 14 years of academic experience, she has made significant contribution to the field. In addition to their academic achievement, she also have edited 8 books and presented or contributed to over 30 research papers at various national and international conferences. She has published more than 15 research papers in international journals, showcasing their expertise and dedication to research. For the past 3 years, she has been a practitioner and trainer of neuro-linguistic programming, NLP. She regularly conducts NLP sessions for faculties and students in colleges and corporate houses, covering a range of topics and techniques. Now, I would like to call Dr. Purva Ranjan ma'am, who is a professor and head at DME Management School. Alongside her academic role, she has an expert POSH trainer conducting workshops for corporate, college and internal committee members to foster a safe and inclusive work culture. She holds a PhD in Retail Marketing Management and MBA in International Business Management from Indore University. I would like to invite Purva ma'am to felicitate our guest with a token of gratitude. Please ma'am. As students, we face many demands, college work, personal issues and preparing for a future career. Sometimes it can take too much and we feel low and unsure. That's when being agile and resilient becomes really important. Being agile means being open to change and being ready to learn new things. It's about having a positive mindset and seeing challenges as opportunities to grow. When we are agile, we can handle uncertain situations better and become stronger. Let's embark on this journey together as we learn how to develop being agility and resilience in a confusing world. Now, I would like to call Dr. Purva ma'am to say a few words over the topic. Everyone, thank you Dr. Swati, Ms. Priyanshi, Bhupinder and Dr. Tazeen. I just, I would prefer if you answer all of you my one question. Who's your favorite hero? Anyone? Raise your hand. Shah Rukh Khan. Please tell me who's your favorite hero quickly? Shakti Kapoor. Huh? Anyone? Bollywood, Hollywood, sports. Kahan se? Virat Kohli. Virat Kohli. Okay. Who else? Favorite heroine? Actress? Kiara Advani. Sonam Bajwa. Okay. I don't know why you all have to search for heroes from these places. These are not heroes, they are paid actors. They are getting paid to perform, to act in different characters. Why don't you look around in your family, in your friend circle, in your teachers to find the real set of heroes? Arpit. All of us are living in ambiguous world because we have chosen wrong role models. And today it's a privilege to have a dear friend, ex-colleague, as well as mother of our previous student, Dr. Tazeen, as the right role model, as the right hero for you. Learn from her, understand her, because life will give you ups and downs. Life will give you situations which nobody has experienced, like even a pandemic that we all have gone through. Sudden loss of, let's say, one of the parents, sudden financial crisis, sudden
announcement of university exams or cancelling of university exams, and sudden anything happening which nobody told you can happen. So it's a great opportunity to understand and learn from the right person, and always look for such heroes around you. Find the right context and right role models to learn from. Do not find your heroes on TV, OTT, silver screen. Please remember, they are just doing their job. They are being paid for it. But the real heroes exist within our own family circle, teacher circle, managing different things, making things happen, handling crisis, handling situations which they themselves did not know about it earlier, yet keeping strong willpower, yet ensuring that the family is safe and sound, earning at the same time. They are the real beacon of light, and today, Tazeen ma'am, we are very privileged that we have our own beacon of light here. And with your presence, and this topic is very close to my heart because we all are training them to be great professionals and great skilled people, but we all need to be good human being first, adaptable, agile, and with your help, the students here, all the mentees sitting here, will be gaining that life skill which is most important and be with them throughout their life. Thank you so much and welcome back. Thank you so much, ma'am, for these beautiful words. And now I would welcome Dr. Tazeen Rahman, and stage is all yours, ma'am. Thank you, Muskan. Thank you, Purva ma'am. Thank you, Swati ma'am. Thank you, Upender sir, for being here. Today we are going to talk on a topic called, what? Personality. क्या नाम है? क्या है topic? Personal agility and resilience in an ambiguous world. ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन करेंगे. Are you all with me? अच्छा लगेगा? सुनोगे मेरी बातें? God. Now I am not an academician, but once you are an academician, you are an academician for your lifetime, right? और मुझे मालूम है आप लोगों को कितना मेहनत करके यहाँ बैठाया जाता है. मुझे मालूम है कितना मुश्किल होता है एज अ टीचर. Am I audible enough? Do I need the mic? No ना? ठीक है. मुझे मालूम है कि कितना मुश्किल होता है टीचर्स को ऐसे करके ना एक सेशन में बैठाने के लिए. मैं इतना बोरिंग टाइप से बोल रही थी तब भी तुम लोग बोल रहे थे हाँ सुनेंगे. See, how many of you are here only for attendance? Just raise your hand honestly. हाँ कर सकते हो. That you are being so honest. हाँ, how many of you are here just for attendance? आप लोगों को डरा धमका के बोला गया था कि यहाँ पे बैठोगे तो attendance मिलेगी. ठीक है, honest. ठीक है, very good. अगर सिर्फ attendance के लिए बैठे हो, please अभी sign करो और you can go. Absolutely attendance मिल जाएगा. That is my guarantee. क्यों स्वाति मैम? दे देंगे ना? देखो मैम ने भी बोल दिया दे देंगे. Head of mentoring sir has said कि हाँ दे देंगे. Hello. Yeah. See, my point is, the institute is taking a lot of pain. है ना? मैंने ये देखा है. That is why my son is in DME. In spite of being an academician, बहुत institute देखने के बाद भी मैंने अपने बेटे को DME में क्यों डाला है? There is a reason behind. I have seen DME growing, and DME genuinely thinks about you guys. इसीलिए my son is also here, and I'm today here as a parent mentor, right? अभी भी दोबारा मैं बोल रही हूँ, किसी को जाना है, please attendance मिल जाएगी, जा सकते हैं. Even if I have 20 students, 10 students, I am more than happy with that. Are you all here? रहोगे? पक्का? रहोगे तो फिर मेरी बातें सुननी पड़ेगी. सोच लो. सोच लिया? सोच लो. I'm giving you again option. जाना है तो जा सकते हो. Attendance मिल जाएगी. पक्का? अब ready हो? Okay. Then we can start the session now. ठीक है. उस दिन I came here to discuss about this session with Dr. Purva ma'am, who is the other head of management. तो मैम ने मुझे एक न्यूज़लेटर पकड़ाया जो which was of Miraki Health Society जो आपकी है. First and foremost, can we have a round of applause for each one of you who have decided to stay back? सब लोग you decided to stay back, right? अपने लिए ताली बजाओ, अपने लिए बजाओ तो थोड़ा अच्छे से बजाओ. I want louder applause यार. तुम लोग जो रुके हो इसका मतलब ही है you want to do something in life. कुछ सीखने को मिलेगा, शायद ये सोच के बैठे हो, सिर्फ अटेंडेंस के लिए नहीं बैठे हो. That is I am assuming. इतना ऑप्शन देने के बाद भी नहीं. ठीक है, तो can we have a round of
applause for yourself. जोर से, हाँ टेबल भी कर सकते हो, टेबल भी कर सकते हो. You're open to do that. You're open to do that. Okay. So the point I'm trying to make is, जब मैंने वो न्यूज़लेटर देखा, I was so very amazed. दो चीजों के लिए. First, इस vicinity में I know almost all the colleges, like 15-16 years in this vicinity, and this is the first college जो mental health को इतना importance दे रहे हैं कि they have formed a society. It's actually big. They'll see I'm getting goosebumps just by talking about it. Why I am so very emotional about it? Because I had myself been through mental health issues. I'll discuss it throughout the session. कुछ ना कुछ हम बातें करेंगे. तो secondly, जो आप लोगों के जो stakeholders हैं, आप लोग के I have jotted down the main points. हर किसने क्या बोला है? I'll just read it. जो आपके vice chairman हैं, Mr. Aman Sahni. Sir says, create an environment of acceptance and support in order to progress. ये बहुत कम academicians और educationalists इस बात को समझते हैं. जो आपके ओनर है, he is the owner, right? Am I right? He is the vice chairman. अगर ओनर के भी यही thought process है, create an environment of क्या? Acceptance. किसके बारे में बात करें? He is talking about मिराकी mental health issues, society के बारे में, right? एक environment create करना है acceptance का. Then support in order to progress. अगर हम एक दूसरे को support करेंगे तो ही हम progress करेंगे. Secondly, आपके जो डायरेक्टर जनरल सर हैं, उन्होंने बोला है a healthy mind is a hope alone for all around development and inner peace. हेल्दी माइंड चाहिए, इनर पीस चाहिए. ये जाके हमें बहुत देर में पता चला. जितना जल्दी सीख जाओगे उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए. देन आपके रविकांत सर बोलते हैं, I really loved what he said. It's not just about excelling in exams. It is about excelling in life. आपके डायरेक्टर की अगर ये थॉट प्रोसेस है कि एग्जाम में एक्सेल करने की बातें नहीं कर रहे हैं, वो एक बात कर रहे हैं एक्सेलिंग इन लाइफ. दैट इज ऑल व्हाट मैटर्स. देन आपके डीन मीडिया स्कूल वो बोलते हैं, if circumstances throw you to a state of uncertainty, you need to find, जिसके बारे में हम बात करेंगे, resilience के बारे में बात करेंगे. देन आपके हेड ऑफ एकेडमिक्स कहते हैं, बहुत टाइम हो गया है कि हमने ना we have considered professionals academic well-being, ये सब के बारे में हमने बहुत बार बोला है. Now it's the time we talk about mental and emotional well-being. He thinks like that. And आपके जो पूर्वा मैम है, मैम ने बोला है, I really loved what she also said. Like we do career planning, we do financial planning, we do retirement planning. But we really need to do mental well-being planning. बात समझ में आ रही है? Why I quoted them is, feel blessed to be in such a place जहाँ के stakeholders का ये thought process है. Don't you think? Don't you think your stakeholders deserves a round of applause? ये thought process है. आप लोग के बारे में इतना सोचते हैं. Can we have a round of applause for your stakeholders? थोड़ा जोर से मोबाइल आगे भी देखा जा सकता है. WhatsApp की मैसेजेस का तुरंत 1.5 घंटा रिप्लाई नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा. गर्लफ्रेंड कहीं नहीं जाएगी, यही है, कहीं नहीं जाएगी. बोल दो सेशन में हम 1.5 घंटे बाद बात करेंगे. Can we have all your mobiles inside? I don't want any distraction. Because एक तो मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी in 2 parts, ठीक है? और जब कोई अपने बारे में बोल रहा होता है ना, he or she wants कि सब सुने. सुनोगे? कहानी सुनोगे? पक्का? पक्का? Okay. Can you settle down fast, newcomers? So, हमारे पास almost an hour, 1 hour, around 1 hour 10 minutes. चलेगा? 1 घंटा या बहुत ज़्यादा भूख लगी है? देख लो टाइम, देख लो. 1 घंटा चलेगा? हाँ या ना बोलो भाई. पक्का? जोर से बोलो तो मैं वो करूँगी. हाँ? 1 घंटा चलेगा? पक्का? नो बोले कौन है? अच्छा, जो नो वाला है उसको बहुत तेज भूख लगेगी तो बीच में रोक देना. मैम बहुत तेज भूख लग रही है, आप जाने दो. चलेगा? चलेगा जिसने नो बोला है? Done? Okay, thank you. So, I'll divide my session in 2 parts. In first session, where I'll be talking about mental health. मैंने बोला मोबाइल रख देना पड़ेगा 1 घंटा. हो गया?
अब रखो, साइलेंट में कर दो, वाइब्रेशन भी नहीं चाहिए। ओके, ठीक है। So I'll be covering two parts. First, I'll discuss about the mental health issues that I underwent, how I overcame it. ठीक है? Then secondly, I will be talking about a life-threatening thing which I underwent. ठीक है? दोनों मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है. Fine? Okay? चलेगा? Okay. जो पहली कहानी है, that is about my mental health issues. थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, 30 साल बैक जाएंगे हम. आई एम टॉकिंग अबाउट 1993. 30 साल बैक, ठीक है? 30 साल पीछे. कौन गया 1993 में? हाँ? पैदा भी हुए थे तुम लोगों में से कोई भी? 1993 में पैदा ही नहीं हुए थे, उस जमाने की बात है. ठीक है? I was in 9th standard at that time. 9, उसकी कहानी का उसके एक साल पहले से एक रिलेशन है. I was a good student. पढ़ाई में मैं हमेशा अच्छी थी और टॉप 5 में आती थी. ठीक है? टॉप 5 में हमेशा आती थी. लेकिन उस जमाने में ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन का बहुत अहमियत होता था. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन का बहुत अहमियत होता था. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कभी नहीं आई, फोर्थ और फिफ्थ आती थी. फोर्थ और फिफ्थ आती थी. 8th में पता नहीं क्या हुआ, आई गॉट द थर्ड पोजीशन. क्लास 8 में आई गॉट थर्ड पोजीशन. बड़ी खुश. माय पेरेंट्स वे फ्लॉन्टिंग मी एवरीवेयर कि हमारी बेटी थर्ड आई है. एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ गए. 9th में आई. 9th में आने के बाद पेरेंट्स ना अभी थर्ड आई है, इस बार ना सेकंड के लिए कोशिश करियो, इस बार सेकंड के लिए कोशिश करियो, बट अच्छा कर लेगी, यू कैन डू इट, राइट? अगर आप लोग अपना 9th स्टैंडर्ड याद करोगे, 9th में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स थोड़ा टफ था 8 के मुकाबले. कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? आ रहा है याद? तो 9th में वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेरी समझ में नहीं आती थी. मुझे बहुत टफ लगा था. It was in the month of November when I had my first attack. मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा पढ़ाई. I am a useless person. जो expectations है सबकी मेरे से अभी, I won't be able to fulfill. मैं नहीं कर पाऊंगी. And it led to a attack kind of a thing. ठीक है? एक अटैक जैसा हुआ. I left everything. मुझे भूख नहीं लगती थी. मैंने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया था. राइट? यहां तक सिचुएशंस आ गई थी कि मुझे अपना जान लेना ज्यादा इजी लगा. I tried committing suicide in 1993 when I was in 9th standard. क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं कर पाऊंगी. मम्मा बाहर गई थी. सुसाइड कैसे करता पता भी नहीं था. क्या किया? जितनी दवाइयां थी ना सब खा ली. जितनी दवाइयां मिली मुझे हाथ में, मैंने सब खा ली. मम्मा आई, दरवाजा लॉक था, दरवाजा तोड़ के मम्मा आई. नाउ बीइंग अ पेरेंट आई अंडरस्टैंड व्हाट शी माइट हैव गॉन थ्रू ऑन दैट डे. तब कुछ नहीं समझ में आया था मुझे. एक बढ़िया सा नोट लिख दिया था कि ना मेरे से नहीं हो पाएगा जिंदगी में. टाटा बाय बाय, आई एम लिविंग दिस वर्ल्ड. यू बोथ हैव बीन अ वेरी गुड पेरेंट्स. मेरे से नहीं होगा. मम्मा ने वो लेटर पढ़ा. मैं होश में थी. दवाई खाई क्या थी पता है? वो विटामिन ही था, कुछ नहीं होना था. लेकिन मम्मा गॉट स्कैर्ड. हॉस्पिटल लेके गई. ऑब्वियसली वो वॉश वगैरह हुआ. आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ कपल ऑफ डेज. 3-4 दिन हॉस्पिटल में रही. वापस आई. वापस आके मम्मा ने बोला, मम्मा पापा मैं वेरी सपोर्टिव, पढ़ाई नहीं करनी है, छोड़ते. हाफ ईयरली आ रहा है. तब हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम्स का कंसेप्ट था. दिसंबर में हाफ ईयरली आता है, हाफ ईयरली कोई जरूरत नहीं है, देखा जाएगा जो होगा. दे वर सपोर्टिव. ठीक है? दे वर सपोर्टिव. धीरे धीरे करके आई रिकवर्ड. उसके बाद 9th का एनुअल एग्जाम दिया, पास हो गई. पढ़ाई में वैसे अच्छी थी, पास होना ही था, हो गई पास. 10th आया. 10th में अगेन वन अटैक आई हैड. 10th में अटैक आया. अटैक था. आई यूज्ड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड. एट दोस टाइम्स ना इतना अवेयरनेस नहीं था मेंटल हेल्थ को लेके, क्योंकि मैं कुछ खाती पीती नहीं थी तो सलाइन लगा देते थे कि कुछ तो जाएगा बॉडी में. 10th में एपिसोड हुआ. 11th 12th में फाइन. 12th के बाद आई वाज सेंट टू पुणे. पुणे में मैंने ग्रेजुएशन किया. पुणे सेकंड ईयर में आई हैड नदर. आई एम बेसिकली फ्रॉम असम. माय डैड केम ऑल द वे फ्रॉम असम टू पुणे. वहां भी सेम वही रहा. हॉस्पिटलाइज रही 4-5 दिन. देन अगेन वो सलाइन में नहीं लगा, कुछ दिन रहा, उसके बाद खत्म. टच इट.
उसके बाद आई वॉज लीडिंग एन एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, MBA वगैरह किया, आई वॉज टॉपर इन MBA। उसके बाद शादी हो गई, शादी होते ही मेरा बेटा हो गया एंड लाइफ हैपेंड, जैसे बोलते हैं ना। सो आई गॉट मतलब चलता रहा एंड आई नेवर हैड एनी एपिसोड, एनी सच एपिसोड। फास्ट फॉरवर्ड 2014, I lost my mother-in-law to pancreatic cancer, and I was very, very, very attached to my mother-in-law. Generally, सास बहू पे बनती नहीं है, ऐसा ही सुना है हमने, लेकिन by the grace of Almighty, मेरी सास के साथ बहुत बनती थी, more than my mother, if I would say. तो when she left, बहुत ही worried हो गया मेरे लाइफ में, but I was coping up, चल रहा था। My son was somewhere around 10 or 11 at that time. 10 or 11 उस एज में था। 2015 I lost my mother-in-law in October 2014 and 2015 somewhere around February का महीना था शायद, February or March, I don't exactly recall the month. We were there, मैं मामा के घर में थी क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चल ही रहा था। प्रायर 4-5 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मामा के घर जाते हैं, मे बी थोड़ा सा चेंज होगा तो आई फील बेटर। तब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात को आई अगेन हैड एन अटैक। मेरा बेटा इतना डर गया था कि रिफ्यूज टू कम क्लोज टू मी। उसने वो मामा मामी के साथ ही रहना पसंद किया। ही वाज लाइक कि ना मम्मा को क्या हो गया? He has never seen me like that. फिर आई वाज लाइक मेरा बेटा मेरे पास नहीं आ रहा है। You know, I have only one son. तो मैं क्या करूं? थोड़ा सा ना आई वाज लाइक मेरी जिंदगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। I never thought that this would again reoccur. ये अटैक मुझे फिर आएगा। Never thought. तो मेरे लिए जिंदगी वहां पे ऐसा लगा था ना कि बिल्कुल खत्म हो गई। But again, by the grace of Almighty, my husband was very supportive. फिर हमने डिस्कस किया कि कुछ तो इशू है, बात करते हैं। Then we decided to go to the best psychiatrist who was in Apollo. We went there. तब पहली बार डायग्नोज हुआ that I had bipolar disorder. सुना होगा तुम लोगों ने bipolar disorder. गूगल कर लेना what is bipolar disorder. उस टाइम डायग्नोज हुआ that I have bipolar disorder. ठीक है? और मुझे बोला गया जैसे डायबिटीज होता है लाइफ लॉन्ग रहता है, वैसे ही ये बीमारी है लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, आपको लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन लेना पड़ेगा। There were 2 tablets which I had to take before sleeping. 2 दवाई थी, लाइफ लॉन्ग मुझे लेने के लिए बोल दिया। ओके फाइन, धीरे धीरे करके I took the medication, धीरे धीरे करके I recovered and my husband was very particular कि दवाई लेती रहना, दवाई ले रही। I myself was very particular कि ना मुझे दवाई लेनी है। But कहीं ना कहीं back of the mind ये था, I'm talking about 2015. 2015 से I had started my medication, proper regular वाला medication. लेकिन कहीं ना कहीं back of the mind था कि मुझे जिंदगी भर दवाइयाँ नहीं लेनी है। तो I was finding out some of the other ways कि मैं ऐसा क्या करूँ so that I can, you know, अपना ख्याल में खुद रख पाऊँ without the help of medication. Art of Living सुना है श्री श्री रविशंकर जी का? आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में जुड़ी थोड़े यू नो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, कुछ यू नो क्रियास होते हैं उनके, सुदर्शन क्रिया बोलते हैं, मेडिटेशंस होते हैं। इट डिड हेल्प मी, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मेडिकेशन छोड़ूं। मेरी हिम्मत तब भी नहीं हुई थी कि मैं मेडिकेशन छोड़ूं। आई वाज इंप्रूविंग, अपने आप को पता चल रहा था कि आई वाज इंप्रूविंग, लेकिन मैं मेडिकेशन छोड़ने की हालत में नहीं थी तब भी। Then in 2019, जैसे इसने भी बोला था मुस्कान, जैसे मुस्कान ने बोला अभी that I am a certified NLP trainer now. तो क्या होता है ना, जब आप कुछ ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हो ना, हम अपने सामने डॉक्टर भी लगा लेते हैं, PhD कर लेते हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी वाली चीजें ना थोड़ी सी कम समझ आती है। We look for logic. हमें लॉजिकल, अपना जो लॉजिकल माइंड है ना कुछ ज्यादा काम करता है। मुझे था ये काम कैसे करता है। Then 2018 स्टार्टिंग में one of my colleague told me about neuro linguistic programming क्या होता है। I started reading about it. जब मैंने पढ़ा तो मुझे समझ में आया, साइंटिफिकली जो समझ में आया, we have millions of neurons in our body. हमारे बॉडी में millions of neurons है, ये तो पता है? पता है, almost all of us know that we have millions of neurons in our body. और जो ये neurons है ना,
ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्ट करते हैं क्या करना है। सिंपल सा ये सोचो, कंप्यूटर क्या लैंग्वेज समझता है जानते हो? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। अगर कोई भी प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर में इंग्लिश में डाल दूं तो क्या वो कंप्यूटर प्रोग्राम रन कर देगा? नहीं करेगा ना। हमें वो प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा? बाइनरी लैंग्वेज में। कुछ स्क्रिप्ट्स बताओ किसमें लिखना पड़ेगा? जावा, सी प्लस प्लस सुना है, पाइथन, है ना? वैसे लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, तभी वो कंप्यूटर वही आउटपुट देगी जो हम चाहते हैं। गॉट द कंसेप्ट? वैसे ही न्यूरॉन्स की अपनी एक लैंग्वेज होती है। आपको न्यूरॉन्स के साथ कैसे बात करना है वो सिखाता है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। बात समझ में आई? कंसेप्ट समझ में आया? तब ये सोचो, मैं जो चाहती हूं, अगर मैं न्यूरॉन्स के साथ वो लैंग्वेज में बात करूं तो न्यूरॉन्स आउटपुट भी मुझे वही देगा जो मैं चाहती हूं। करेक्ट? यस और नो? आई बात समझ में? सो दैट एनएलपी हेल्प मी कि मैं अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम कैसे कर सकती हूँ। मैं अपने सेल्स को क्या इंफॉर्मेशन देना है। न्यूरॉन्स क्या होता है? सेल्स के बीच में, सेल्स के अंदर एक छोटी सी चीज होती है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। बड़ी छोटी सी चीज, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, बड़ी छोटी सी चीज। लेकिन अगर उसको आपने ट्रेन कर लिया ना, तो आप अपनी जिंदगी जैसे जीना चाहते हो जी सकते हो। आई डिस्कस दिस बाइपोलर डिसऑर्डर विथ माय मेंटर, क्योंकि एनएलपी के थ्रू यू कैन ओवरकम मेनी डिजीजेस। बहुत सारी डिजीजेस की क्योर है एनएलपी के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू आप कर सकते हो। तो सर को मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, क्या इसका भी क्योर है एनएलपी? सर ने बोला बिल्कुल है, क्यों नहीं है? Then he started training me on how to overcome bipolar disorder through neuro-linguistic programming. हाँ, पहले हिम्मत नहीं हुई कि मेडिकेशन में एक बार में छोड़ दूं। धीरे धीरे करके मैंने मेडिकेशन कम किए, डोजेस कम किए, and 2019 end से, this was I was introduced to NLP in 2019 starting. 2019 end से I am totally medicine free. मैंने मेडिसिन लेना 2019 end से छोड़ दिया। उसके बाद से मैंने मेडिसिन नहीं ली। Now why I am sharing this with you is, first you know, अगर आपको ऐसा फील होता है कि कोई भी you are undergoing any mental trauma, कोई disorder, आपको ऐसा फील हो रहा है, you know, you are blessed that you have a professional psychiatrist in house, जो शायद every Thursday आती है। आज आई हुई थी, I had the opportunity to meet her also, Dr. Ragini, right? So you are blessed कि आपको इन हाउस से मिल रही है। कभी कभी होता है ना, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकते, शायद मजाक बना दे इस बात का। Go and talk to her. She is the right person to guide you. आप सबके mentors भी है, am I right? ना? Swati ma'am is heading the mentoring cell, है ना? सबके mentors है आपके। First go and talk to your mentor. Your mentor will guide you, and you have a qualified professional in house. आई बात समझ में? Go and talk. किसी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जिसका सोल्यूशन नहीं होता है। सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। You just have to find your way out. Okay? Done? आई बात समझ में? हाँ? So mental health is, अब मैं कहीं से लग रही हूँ क्या mental health patient? नहीं लग रही हूँ ना? नहीं लग रही हूँ ना? Right? You just have to deal with it. That's it. Right? ठीक है? Okay, great. Now come to my second part of my story. Okay? अब दूसरी part of story बात करते हैं। Okay, fine. So next part of the story is 2021 March. I know the exact date of this, 13th March 2021, when I got my biopsy report. Biopsy report किस चीज का होता है पता है? कैंसर का होता है biopsy report, right? 2021 March 13th, I got my biopsy report on my hand, and it showed 3rd stage breast cancer. ठीक है? 3rd stage breast cancer. अब सिचुएशन है, फेस करो, क्या करना है? Even though, believe me, आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन the first week
was very bad. क्योंकि कैंसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कैंसर नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? Right? More than me, my husband was shattered totally because जैसे मैंने बोला, we had already lost my mother-in-law to pancreatic cancer 2014. My husband was totally shattered. उनके बहुत friends हैं नहीं. He is totally dependent on me. सब चीज के लिए I am his word. उनको ऐसा लगा कि मैं नहीं होंगी तो क्या होगा. मुझे अपने से ज्यादा उनकी चिंता थी कि मेरे को कुछ हो गया तो इनका क्या होगा. First week was bad. मैं अकेली होती तो I used to cry. और इतने टेस्ट होते हैं ना, every day you have to go to the hospital. Hospital का नाम सुन के I was irritated. एक दिन there was this episode जिसके बाद मेरा थोड़ा एटीट्यूड चेंज हुआ. मैं एनएलपी वगैरह सब कुछ भूल चुकी थी वो एक वीक. फर्स्ट वीक मैं सब कुछ भूल चुकी थी. मैं अकेली रहती, सिर्फ रोती, कोई आके काउंसिल करता, फिर मैं बोलती क्या समझो क्या बीत रहा है मेरे पे, कुछ मत बोलो. वन डे ऐसे ही हॉस्पिटल से आए थे, रिपोर्ट्स मेरे हाथ में था, मैंने सारे रिपोर्ट्स उठा के ऐसे फेंक दिए कि ना मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर रही टेस्ट वगैरह, कुछ नहीं कर रही, मैं ट्रीटमेंट नहीं करा रही, मर जाने दो मुझे, and this and that, and broke down. My husband cried a lot that day because he also felt very very helpless. तब पता है कौन हमारे यहाँ आया हेल्प करने के लिए हमारी. Sorry if I get a little emotional because that person is right here. My son came. उसने हम दोनों को बैठाया. पहले उसने हम दोनों को काउंसिल किया. So उसने पहले हम दोनों को काउंसिल किया कि see, we have this situation, we have to face it. पहले उसने हम दोनों को काउंसिल किया, बहुत प्यार से उसने समझाया. He was not even 18 at that time, he was 17 at that time. 17 साल का बच्चा आके हम दोनों को समझाया कि you know ये सिचुएशन है, हमें as a family we have to face it. We have to face it. हम फेस करेंगे इसको. पहले तो हस्बैंड हमने दोनों को सेटल डाउन किया. उसके बाद he came and spoke to me. He told me, see mama, we are there. I am there. My papa is there. I have another son, Arvind. He is there. I have my house support Beena. वो है, हम चार हैं तुम्हारे साथ, pillar of strength. आपके साथ हम खड़े हैं. But at the end of the day, it's you who have to take a call. Please find a purpose of your life so that आप में वो zeal and enthusiasm रहे कि जिंदगी आपको जीनी है. It is not for मेरे लिए या पापा के लिए आपको जिंदगी जीनी है, आपको जिंदगी अपने लिए जीनी है. You have to find that call. तभी वो अंदर से आग आएगा, तभी you will be able to fight it. Right? जब उसने वो चीज बोली, मेरे दिमाग में वो चीज ऐसे क्लिक हुई ना, it's like I am NLP trained. Can I have my son? Can you just stand up? He's here. He's in front. So today he is standing strong in front of you all. He has a very very big role to play. He is your colleague or I mean batchmate only. शायद first year का है. He is in first year. Sit down. Thank you so much, Irfan. So उस दिन से उसने मुझे बोला, जब बोला कि you are NLP trained, you know how to train your neurons. Why don't you go start practicing again? मैंने बोला चलो अब तो जिंदगी जीनी है दोबारा. First thing I did was I revamped my balcony. बड़ा सुंदर सा balcony बना लिया मैंने. सुबह सुबह उठ के प्राणायाम करती थी वहाँ पे, NLP टेक्निक्स प्रैक्टिस करती थी वहाँ पे. I boosted up कि मैंने बोला चलो अब now I am ready to fight it. तो पूरी जर्नी को हम दोनों ने क्या, इट वाज हम दोनों का डिस्कशन था. विल यू नो क्या बोलते हैं उसको, ये करते हैं डॉक्यूमेंट करेंगे पूरी जर्नी को, क्या क्या हमने किया. सो आई हैव अ फ्यू थिंग्स विथ यू टू शेयर माय जर्नी. दिस वाज द डे आई ऑफिशियली स्टार्टेड माय कैंसर जर्नी. अगर आपको पता है कैंसर में देयर इज समथिंग कॉल्ड द ट्रीटमेंट जो होता है, कीमोथेरेपी होता है, जानते हो ना. अब ये कीमोथेरेपी करता क्या है, जितने ग्रोइंग सेल्स है आपके बॉडी में ना उसको मार डालता है. ठीक है, जितने ग्रोइंग सेल्स है. व्हाट इज कैंसर?
कैंसर इज बेसिकली ग्रोइंग जो फास्ट ग्रोथ सेल्स, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स होता है, जिसके वजह से अल्टीमेटली सारे ऑर्गन्स एट द एंड फेलियर हो जाता है, राइट? तो कीमो क्या करता है, बॉडी के जितने भी ग्रोइंग सेल्स है ना उसको मार डालता है। आपके ये क्या है, ये क्या सेल्स है? हेयर इज दैट सेल, लेकिन ये ग्रो कैसे करता है? स्कैल्प से। तो ग्रोइंग सेल्स होता है। तो फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज योर हेयर स्टार्ट्स फॉलिंग। इतना मुझे मालूम था कि कीमो के बाद मेरे बाल झड़ेंगे। सो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आई हैड टू, इतना शोल्डर लेंथ हेयर था, सिल्की बड़े दिख रहे फोटो में। आई वाज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट माय हेयर, बड़ा अच्छा लगता था ऐसे ऐसे फ्लॉन्ट करके। स्वाति मैम एंड वी वर लाइक दिस, लॉन्ग टाइम बैक वी वर लाइक दिस। बहुत मेहनत करके मैंने बाल लंबे किए थे, शी हैज बीन विटनेस टू दैट। तो बहुत मेहनत से बाल लंबे किए थे, तो आई वाज वेरी 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 कॉन्शियस अबाउट माय हेयर। बहुत मेहनत की थी बाल लंबे करने में। तो मुझे मालूम था तो ये जाने वाले हैं, अब क्या करेंगे भाई? पहला जिस दिन नेक्स्ट डे कीमो स्टार्ट होने वाला था, ये फोटो के नेक्स्ट डे मेरा कीमो स्टार्ट होने वाला था। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आई वांटेड टू कट माय हेयर रियल शॉर्ट, ठीक है? मुझे अपने बाल बिल्कुल शॉर्ट काटने थे। दैट इज अ ट्रॉमा फॉर एनी वुमन, और स्पेशली मेरे जैसे के लिए जिसने बहुत मेहनत से बाल लंबे किए थे। तो मैंने क्या किया, आई वेंट, नेक्स्ट स्लाइड। So this is me and Irfan who was shooting the entire thing. मैंने बोला मैं करूंगी भी तो एकदम बढ़िया जगह से। टोनी एंड गाय गई थी इंदिरापुरम हैबिटेट सेंटर में बाल कटवाने के, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड। This is me getting a little emotional just before getting my hair cut. हाँ, ये phases आएंगे लाइफ में, बस you just need to know how to handle it, right? Next. So this was again a happy me. बाल ऐसे कर लिए थे, बाल ऐसे सामने क्यों थे अब नेक्स्ट पिक में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यस, दिस इज व्हाट आई डिड। आई गॉट अ हेयर टैटू डन बिकॉज़ आई नो कि मेरे बाल जा रहे हैं। मुझे आई नीडेड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड, कुछ तो होना चाहिए टू लुक फॉरवर्ड। सो दिस इज व्हाट आई डिड टू गिव मी दैट फील गुड फैक्टर। थोड़े से पैसे खर्च हुए, 2000 रुपए लिया था ये टैटू बनाने का, बट इट वाज फाइन, ठीक है? So I got this tattoo done. Yeah, next thing. So this was my hairstylist. वो टोनी एंड गाय में झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में टोनी एंड गाय की थी। He was the one who did the tattoo. उसने ये tattoo बनाया था। This is how I handle my first thing. कि मुझे अब बाल छोटे करने हैं तो कैसे मैं cope up करूँगी? That was the first thing I did. Next. This was the day of my first chemo. I was in the hospital. ये फर्स्ट कीमो हॉस्पिटल बेड है। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ ये चीज, कीमो लेने के लिए ना देयर वाज अ स्मॉल सर्जरी, यहाँ पे हुआ था स्मॉल सर्जरी। कीमो पोर्ट डालते हैं क्योंकि कीमो इज समथिंग लाइक सलाइन जैसा जाता है, आपके वेन्स के थ्रू जाता है। तो एक कीमो पोर्ट डाल देते हैं यहाँ पे सो दैट इट बिकम्स इजियर, क्योंकि कीमो के बाद क्या होता है आपके वेन्स ना थोड़े वीक हो जाते हैं, तो बाद में वो तो बार-बार प्रिक करने से अच्छा है यू हैव समथिंग लाइक दिस एंड देन यू गेट योर कीमो थ्रू दैट। उस दिन ऑपरेशन भी था, ऑपरेशन भी हुआ, प्रॉपर ओटी में ले जाके ऑपरेशन हुआ और सेम डे कीमो भी लेना था। ऑपरेशन होने के बाद मेरी हालत देख के मेरे हस्बैंड ने भी बोला आर यू श्योर आज ही कीमो लेना है, वी कैन वेट। मैंने बोला नहीं आए हैं तो हॉस्पिटल बार-बार नहीं आऊंगी, सारा निपटा के जाना है। माय डॉक्टर आल्सो केम, she also said are you really comfortable to take the chemo? I said yes fine. ये तब मुझे रियलाइज नहीं हुआ, मुझे लगा इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। लेकिन बाद में आजकल जब सपोर्ट ग्रुप में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, एवरीवन इज एस्टॉनिश्ड कि जिस दिन तेरा सर्जरी हुआ उसी दिन तूने कीमो ले लिया था। मैंने बोला हाँ, व्हाट वाज द बिग डील? None of them whom I met, जिस दिन सर्जरी हुई उसने वो कीमो लिया, किसी ने नहीं किया है जिनको मैं मिली। तब मुझे समझ में आया ओके मे बी आई हैंडल थिंग्स डिफरेंटली। हाउ आई वाज एबल टू हैंडल थिंग्स डिफरेंटली? बिकॉज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हेल्प मी, एनएलपी हेल्प मी। आई बात समझ में? इट इज ऑल अप हियर हाउ यू डू इट, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, पहला कीमो लेने के बाद बाल तो बहुत शॉर्ट थे ही थे, लेकिन पहला कीमो लेने के बाद
I was again sitting in the balcony, जैसे मैं बोल रही थी ना कि प्राणायाम वगैरह करती हूँ मैं सुबह, प्राणायाम वगैरह किया, उसके बाद ना धीरे से बस मैंने अपने बालों में हाथ डाला, तो ऐसे करके ना चंक बाहर निकल आया बालों का, इतने छोटे बाल थे बट वो भी ऐसे निकल आया हाथ में। तो it's like, ओह अब ये भी जाने वाले हैं, अब क्या किया जाए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। I don't want कि वो खुद अपने आप पैचेस में निकले, कितनी अगली दिखोगे पैचेस में, यहाँ बाल है यहाँ नहीं है। Then what I did was, फिर से टोनी एंड गाय पहुंच गई, फिर से टोनी एंड गाय पहुंच गई। हालांकि टकला होना था, I could have it from any parlor, सिर्फ उस टाइम तो बुलाना था, वो तो कोई भी कर देता, लेकिन मैंने बोला नहीं बाबा, मुझे तो एम्बियंस चाहिए, उसी फील्ड में मुझे टकला होना है। बैकग्राउंड में मेरे हस्बैंड है, दिख रहे हैं तो। So then I went bald. वही टोनी एंड गाय जाके वही वीडियो शूट करके I went bald. ठीक है? अब बॉल तो हो गई, थोड़ा बहुत ग्रोइंग, वो एक अलग वीडियो है, कभी फुर्सत मिलेगा तो वो दिखाऊंगी how I was emotional। जो मेरा हेयर ड्रेसर था, I still remember, he was my common hair dresser, वो जानता था मुझे, एक ही के पास जाते रहो तो you build a relationship। उसने बोला आप आंखें क्लोज करके, अगर वीडियो में देखा होगा I was keeping my eyes closed, he was like आप आंखें खोलोगी तो I won't be able to, उसका मैं नहीं घुमा पाऊंगा, you have to keep your eyes closed। मैंने बोला okay fine, I was keeping my eyes closed। जब खोला तब obviously I was crying, husband was, पीछे दिख रहे थे ना husband था, मेरे बेटे थे, my house help Dina, Arvind, everyone was there। Support system was, बेटे जिस दिन ये हो रहा था, it was his best friend's birthday, वो नहीं गया, क्योंकि आपके एज में बेस्ट फ्रेंड की अहमियत क्या होती है, we all know right, वो नहीं गया, he was with me। उसके बाद he also got his hair, पूरा तो शेप ऑफ नहीं किया था उसने, क्या बोलते हो 0 1, क्या बोलते हो तुम लोग जो एकदम चढ़ा देते हो, क्या था वो, एक नंबर, whatever it was। उसने भी वो किया। घर आने के बाद मैं हस्बैंड से कि मुझे पजामा खरीदना है, मैं आ रहा हूँ, when he came back he was also उन्होंने भी वो काम किया। So all three of us were like, थोड़े टकले, right? So why I am saying this, your support system plays a very, very, very important role। अगर आपके फैमिली में if anyone is going through that, please be their support system। You don't know what the support system कैसे wonders करते हैं, right? और अगर आपके पेरेंट्स को कभी भी आपकी सपोर्ट की जरूरत हो ना, प्लीज स्टैंड स्ट्रॉन्ग। कभी मैंने पढ़ा था, बहुत कम मौके ऐसे जिंदगी में आएगा, स्टिल आई हैव बोथ माय पेरेंट्स सो आई कैन से दैट, बहुत कम ऐसे मौके आएंगे जिंदगी में जब आपके पेरेंट्स आपका सपोर्ट चाहते हैं। गॉट माय पॉइंट? बहुत कम मौके आएंगे जहां आपके पेरेंट्स को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। उस टाइम पे अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहे ना, ऊपर वाला will shower blessings like anything on you। Please mark my words। पेरेंट्स तो दिल से दुआएं देते ही है, वो ब्लेसिंग्स का कितना बड़ा रोल है वो एक अलग कहानी है, वो कभी और डिस्कस करेंगे, ठीक है? बट माय ओनली थिंग इज, कभी भी किसी को सपोर्ट चाहिए, प्लीज बी स्ट्रांगली गिव दैट सपोर्ट टू दैम, राइट? ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, अब ये तो टकला सर हो गया, बाल है नहीं। पहले मैंने ये भी सोचा था कि ना टर्बन्स बांधेंगे, माय भाभी इज अ स्टाइलिश, मैंने उससे वीडियोस भी मंगाए कि अलग स्टाइल में कैसे टर्बन्स बांध सकते हैं। देन आई टोल्ड यार नहीं यार, ये सब में मजा नहीं आएगा, बहुत टाइम लगेगा, ऐसे ही रहेंगे हम। कुछ नहीं किया था मैंने, इफ यू कैन सी आई गॉट अ मेहंदी टैटू डन। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? This is a mehendi tattoo that I got done on my bald head। दिख रहा है किसी को थोड़ा बहुत? दिख रहा है? This is a mehendi tattoo that I got done on myself। ये दिख रहा है?
फेसबुक इंस्टा सब में डाला था मैंने उसमें कोटेशन लिखा था, इफ लाइफ गिव्स यू लेमन देन ट्राई टू मेक लेमनेड, वो डाल के मैंने पोस्ट बनाया था. सो व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज यू हैव टू फाइंड अ वे, कि जैसे बोलते हैं ना हर चीज में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढो. वो टैटू मुझे बड़ा स्टाइलिश सा लगा था, मैंने बोला कुछ करते हैं ऐसा कुछ जो which will help me to accept my baldness. उसके बाद I accepted it. This is a marriage which I attended. इस मैरिज में मैंने डांस भी किया था. People came and spoke to me. हमने डांस भी किया था. लंदन टू मक्का पे डांस किया था. I still remember. Next. Okay. थोड़ा क्या? ये मैरिज में ये वाले both are marriage. शादियां मैंने ऐसे ही अटेंड किया. You can see all decked up me, right? अब मैंने क्या किया? I started celebrating each thing. अब जो मेरा ट्रीटमेंट का प्रोसेस था वो was पहला कीमो was like full कीमो, normal कीमो, जब which was affecting all my healthy cells. उसके बाद रेडिएशन था. फर्स्ट कीमो खत्म हुआ जब मेरा फर्स्ट कीमो जब नॉर्मल वाला कीमो खत्म हुआ, एंड लकीली इट वाज माय बर्थडे मंथ आल्सो, नवंबर. सो व्हाट आई डिड वाज, मेरा एक बहुत पुराना सपना था पैराग्लाइडिंग करने का. पैराग्लाइडिंग क्या होता है सुना है? कहाँ है इंडिया का आसपास सबसे बढ़िया पैराग्लाइडिंग प्लेस पता है किसी को? मैक्लोडगंज और भीमताल. सबसे बेस्ट कहाँ है? nobody is into adventure sports. धर्मशाला. ओके, सब में जगह होता है, जो जगह तुम लोगों ने बोला वहां होता है, लेकिन हर किसी का एक हब होता है ना. हब ऑफ पैराग्लाइडिंग इज बीरबिलिंग. किसने बोला ये? What's your name? आरव के लिए ताली बजाओ तो भाई. मेरे जैसा कोई तो मिला. चलो. So I went to बीरबिलिंग. ठीक है? एक ग्रुप है यूनाइट स्ट्रेंजर्स बोल के, सोलो ट्रैवलर्स को एनकरेज करते हैं. मैं उनके साथ बहुत घूमती हूँ. तो और मेरा बर्थडे और जो ओनर का बर्थडे है वी शेयर द सेम बर्थडे. तो जनरली लास्ट 3 साल 4 से हम दोनों ट्रिप में ही बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे. तो मैंने बोला कि मुझे बीरबिलिंग जाना है. उसने बोला बस आपने बोल दिया वहीं का ट्रिप बनेगा. सो वी वेंट टू बीरबिलिंग. मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि आई हैव प्लान पैराग्लाइडिंग. मुझे जाने नहीं देते, उनको नहीं पता था. उनको यही सिर्फ पता था बीरबिलिंग एक हिल स्टेशन है, वहां पे हम जा रहे हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये दोनों बर्थडे लास्ट 2-3 साल से साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं. जिस दिन रात को जा रहे थे हम, आइटिनरी उनके मोबाइल पे आ गया व्हाट्सएप पे. मुझे देख के बोलता आइटिनरी में यहाँ तो पैराग्लाइडिंग लिखा हुआ है. मैंने बोला हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ. राइट? कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? ये अच्छे से घुमा लेना ना, एक्स्ट्रा दे दूंगी तुम्हें. So that was the paragliding thing which I celebrated on completing my chemo, right? उसके बाद कीमो के बाद रेडिएशंस हुए. जिस दिन रेडिएशन खत्म हुआ, luckily my sister also joined me उस टाइम पे. Can we have the mobiles please? नीचे पहले इंस्ट्रक्शन था, पहले चांस दिया था बाहर जाने के लिए, right? Okay, my sister also came. It was in the month of December. So we planned a 10 days road trip. जब मेरा रेडिएशंस खत्म हुआ, 10 days का रोड ट्रिप लिया था हमने. दिल्ली टू देहरादून, देहरादून टू प्लेस को चक्राता. अगर आप लोगों ने सुना होगा चक्राता. चक्राता में देयर इज दिस वाटरफॉल कॉल्ड एज टाइगर वाटरफॉल. उसकी आवाज ऐसी आती है कि ना टाइगर जैसे दहा रहा हो. So I always wanted to go there. So my sister and brother-in-law they planned the entire thing. We took a Zoom car. 4 of us went there. चक्राता गई. लोग जनरली बोलते हैं कीमो के बाद ना बहुत वीकनेस आ जाती है, ये बोला जाता है.
मुझे यहाँ तक बोला गया था कि आप बेड से लेके वॉशरूम तक नहीं जा पाओगे। हमारे आजकल छोटे फ्लैट्स में बेड और वॉशरूम के बीच में डिस्टेंस कितना होता है वी नो, राइट? वो बोला गया था मुझे कि बेड से उठ के शायद आप वॉशरूम तक नहीं जा पाओगे। पहला कीमो के बाद ना सीरियसली, क्योंकि इतना लोगों का सुना था ना, लगा कि ना अब थोड़ी सी वीकनेस हो रही है क्या, अब ये हो रहा है क्या, वॉमिटिंग हो रही है क्या। और मेडिकल साइंस इंप्रूव सो मच ना, आपको सारे साइड इफेक्ट्स कॉम्बैट करने के लिए मेडिसिन दे देते हैं। एंड देन इट्स ऑल अप हियर। पहला कीमो के बाद आई सेड कि भाड़ में जाए ये सब, अपने यहां से स्ट्रांग होना है। आई यूज्ड टू टेक ऑनलाइन सेशंस ऑन एनएलपी ड्यूरिंग दैट टाइम। कीमो के दूसरे तीसरे दिन आई वाज टेकिंग सेशंस। उसके बाद से कभी कुछ नहीं हुआ मुझे। पहला ही कीमो में क्योंकि लोगों की बातें मैंने सुनी थी, बाद में मैंने रियलाइज किया साइकोलॉजिकली इट इफेक्ट्स यू। मैंने दो चीजें बिल्कुल नहीं की थी। एक गूगल नहीं किया था। ओनली थिंग दैट आई गूगल्ड वाज व्हाट इज द सर्वाइवल परसेंटेज ऑफ अ थर्ड स्टेज ब्रेस्ट कैंसर। उसमें आया था 80%। मैंने बोला बहुत बढ़िया, 80% में तो आ ही जाऊंगी यार, बच जाऊंगी, कुछ नहीं होने का है मुझे। वही सिर्फ गूगल किया था और कुछ गूगल नहीं किया। सेकेंडली व्हाट आई डिड इज, जिन लोगों से मुझे थोड़ी सी भी नेगेटिव वाइब्स आती थी ना, आई स्टॉप टॉकिंग टू देम। मैं उनसे बात नहीं करती थी। जो बोलते थे ना, हाय क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज हो रहा है, चीजें क्या हो रहा है, कीमो के साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, सब बढ़िया, बाय बाय, मेरे पास ना कुछ काम आ गया है। आई यूज्ड टू अवॉइड सच कॉल्स। मैं मिलती ही नहीं थी। हाँ, आई हैड माय सेट ऑफ गुड फ्रेंड्स थ्रू, जो मेरे पास आते रहे थ्रू आउट दिस। एक बॉम्बे से आती थी, एक पुणे से आती थी, एक असम में थी। सो दोस वर माय सपोर्ट सिस्टम। जहां से मुझे एनर्जी मिलती थी, अच्छा लगता था जिनसे बात करके, मैं वो करती थी। ट्राई डूइंग दोस थिंग्स, ठीक है? फिर हम स्टोरी पे थे, कहां? रोड ट्रिप पे, ठीक? व्हाई आई वाज टेलिंग दिस, टाइगर फॉलो दिस ट्रैक। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कोई कीमो पेशेंट उस ट्रैक पे जाएगा। आई वेंट, वो ट्रैक किया मैंने। नेक्स्ट पिक दो। I went to that track. This is the Tiger Fall. मैं टाइगर फॉल के सामने खड़ी हूँ and this amazing feeling when you are with nature. I enjoyed that. आई बात समझ में? It is all up here. अब मेरा लाइफ का सीधा फंडा है, हर स्मॉल मोमेंट को मैं एंजॉय करती हूँ। नेक्स्ट पिक। दिस इज अ मदर्स डे, अभी वाला मदर्स डे। हर मोमेंट को एंजॉय करो, ठीक है? ये दिस इज द गर्ल इन बिटवीन इज गुंजन। ये मुझे ट्रिप में मिली थी। अब शी इज मोर देन अ डॉटर टू मी। जिस तरीके से इसने थ्रू आउट जर्नी में, एक दिन मैं हॉस्पिटलाइज थी, रात के 1:30 बजे शी वाज देयर। 1:30 बजे हॉस्पिटल, बस उसको इतना पता चला कि मैं हॉस्पिटल में थी। शी वाज देयर ऑल द वे फ्रॉम जनकपुरी टू मैक्स वैशाली। सो एंड ये दूसरा तो इरफान है ही। सो स्टार्ट एंजॉयिंग ईच मोमेंट। ये मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिस इज इन अरुणाचल। अभी रिसेंटली असम गई थी। नेचर को एंजॉय करने में अलग ही मजा आता है। माय पॉइंट इज, जहां जो मिल जाए ना उसको 100% एंजॉय कर लो। दैट्स इट। एंड दिस इज मी, वेरी अनलाइक मी। स्वाति मैम, यू नो मी। ऐसा सपने में मैं नहीं सोच सकती कि मैं ऐसे फोटो क्लिक करूंगी, ऐसे मेकअप करूंगी। दिस वाज माय 20th एनिवर्सरी व्हिच वाज सेलिब्रेटेड बाय माय फैमिली बैक इन असम। सो माय देवरानी गॉट मी रेडी। ब्यूटिशियन बुलाया, नहीं भाभी आपको रेडी होना है। मैंने बोला ओके ठीक है, ये भी मजा करेंगे। भाभी, मैंने बोला आप पोज बताओ, आता तो नहीं है पोज देना, तो उसने पोज बताया कि ऐसे पोज दो। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज एंजॉय लाइफ, ठीक है? बंद कर दो, हो गया पीपीटी का काम। एंजॉय लाइफ, जो मिलता है उसको एंजॉय करो। डन? ठीक है, करोगे? एक छोटा सा चीज जिसने मुझे बहुत हेल्प किया इज काउंटिंग माय ब्लेसिंग्स। आई बात समझ में? बीइंग ग्रेटफुल, काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। डोंट यू थिंक आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो? आराम से यहाँ बैठ के एसी में बैठ कर। I would like you to have a glass of water first. And in the meantime, I will really request my audience, if you have felt touched by what ma'am has said, please give her a round of applause. So, gratitude ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है the way you lead your life. मैंने कहीं एक पढ़ा
कि the life that you were leading, हाँ, the life that you are leading, जो comfort में बैठे हो ना यहाँ, it is a dream of many. समझे बात को? इसकी बात को समझो. The life that you are leading is a dream of many. Especially अगर आप इंडिया जैसी जगह पे हो, आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि नेक्स्ट मील क्या खाओगे. हाँ, सोच रहे हो कि कहाँ जाके बाहर क्या खाए, कहाँ बर्गर खाए, कहाँ पिज्जा खाए, लेकिन ये तो नहीं सोचना पड़ रहा है कि आपको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? सो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है. कहाँ बैठे हो आप लोग? द लाइफ दैट यू आर लीडिंग. गर्मी में घर में फैन तो सभी के हैं, है ना? डोंट यू थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग? एसी है तो सुपर डुपर ब्लेसिंग है कि नहीं? हाँ, तो छोटा सा एक्सरसाइज आई वांट यू ऑल टू डू. व्हाट आई वांट, सब लोग एक तो सीधे बैठेंगे, बैग नीचे रख देंगे प्लीज, बैग्स नीचे रख देंगे, एकदम बैक अपराइट करके बैठेंगे, बैक का सपोर्ट नहीं लेंगे, चेयर का सपोर्ट नहीं लेंगे, चेयर का सपोर्ट नहीं लेंगे, अपने स्पाइनल कॉर्ड पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करेंगे, मोबाइल को नीचे रखेंगे, पाम्स ओपन करेंगे और ऐसे बैठेंगे. पाम्स आप टेबल के ऊपर भी रख सकते हो, थाइस के ऊपर भी रख सकते हो, wherever you want. What we are gonna do is, मैं पहले बता देती हूँ क्या करने वाले हैं. First we will take 3 deep breaths, closing our eyes. ठीक है? जब मैं बोलूँगी तब करना, आप सुन लो पहले. We'll take 3 deep breaths while closing our eyes. ठीक? उसके बाद आप अपने मन में सोचोगे 5 things that you are grateful for. समझ गए? 5 things जिसके लिए आप ऊपर वाले, अगर आप भगवान को मानते हो, your God, you will say thank you. अगर आप भगवान को नहीं मानते हो, यूनिवर्स को तो मानते हो, यूनिवर्स तो है ही, you thank the universe. ठीक है? कि आपको ये blessings मिली हुई. What are the things that you are grateful for? 5 things. और आप में से किसी को भी randomly I'll ask to come here and tell me the 5 things that you are grateful for. कोई भी हो सकता है वो, इसलिए सबको करना है ये एक्टिविटी. ये मत बोलना मैम पता ही नहीं चला 5 से 5 कौन सी थिंग है जिसके लिए थैंकफुल बोलना है. Can be anything. If you have both your parents with you, that's a big blessing, right? Be grateful for that. अगर कोई ऐसा है जो आपका केयर कर रहे हैं, be thankful for that. Be thankful for DME कि आप ऐसी कॉलेज में पढ़ रहे हो जो इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं आपको. You have wonderful teachers, सब कुछ बढ़िया. You can be grateful for anything. I'm just giving you examples. कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, खाने को मिल रहा है, you can be grateful. I'm giving you examples what you can be grateful for. आपकी each and body part बढ़िया से काम कर रहा है, you can be grateful for that. है ना? आई बात समझ में? कितनी चीजों के लिए you can be grateful? Can we do this exercise please? Can we do this exercise? मजा नहीं आया? जोर से बोलोगे तो ही करूँगी, otherwise I'm going. Can we do this exercise? Yes, ma'am. और जोर से? Yes, ma'am. Close your eyes. All of you close your eyes. Back upright. चेयर का सपोर्ट नहीं लेंगे, जो भी आएगा मैं उसको जाके मारूंगी पकड़ के. Eyes closed. Eyes closed. Back upright. All of you. जबरदस्ती करवाऊंगी ये मैं, जो नहीं भी करना चाहेगा तो. Eyes closed. पाम्स कहीं भी रख सकते हो, टेबल पे भी रख सकते हो, थाइस पे भी रख सकते हो, no issues. अब डीप ब्रीथिंग लेंगे. अब डीप ब्रीथिंग कैसे लेना है? मेरे काउंट में 1 2 3 में बोलूंगी तो आपको डीप ब्रेथ लेना है. ठीक है? 1 2 3 में काउंट बोलूंगी, डीप ब्रेथ लेना है आपको. एंड जब ब्रेथ लोगे ना, अब बलून समझो अपने पेट को. जब बलून में हवा डालते हो तो क्या होता है? बलून फूलता है ना, वैसे ही आपका पेट फूलेगा when you breathe in. ठीक है? Feel that. Then I'll say 1 2 3 4. Hold the breath till the count of 4. Then I'll say 1 2 3 4 5 6. धीरे धीरे करके ब्रीद आउट करना है. जैसे बलून फुस हो जाता है वैसे आपका पेट धीरे धीरे अंदर हो जाएगा. I think I'm clear enough. ठीक है? Close your eyes. Palms open. Back absolutely straight. Open your palms facing the sky. Palms open रहेंगे facing the sky. Palms open रहेंगे आपके facing the sky. 1 2 3 4. Slowly and gently breathe out. 1 2 3 4
नहीं होंगे। पेट बिल्कुल अंदर को, वेरी गुड। टेक अनदर डीप ब्रेथ इन, 1 2 3, पेट बाहर, होल्ड इट, 1 2 3 4. Now slowly and gently breathe out, 1 2 3 4 5 and 6. पेट बिल्कुल अंदर, keep your eyes closed. Last time लेंगे और एक deep breath. Take a deep breath in, 1 2 3. Hold your breath, पेट बिल्कुल बाहर, प्यारे से मुस्कुराहट अपने चेहरे पे. Hold your breath. Now slowly and gently breathe out, 1 2 3 4 5 and 6. यही स्माइल अपने चेहरे पे मेंटेन करते हुए just think about 5 things that you are grateful for. Just think about what are the 5 things that you are grateful for. Now rub your palms, keeping your eyes closed. अच्छे से रब, जोर जोर से करो. थोड़ा सा गर्माहट फील होना चाहिए हाथों में. गर्माहट फील होना चाहिए हाथों में. Put it on your eyes. Feel the warmth around your eyes. Very slowly and gently open your eyes. Very slowly and gently open your eyes. ऐसा कोई है जिसको नहीं मिला what they are grateful for? Raise your hand. कोई भी ऐसा है? सबको मिला? सबको मिला? I want one of you, तुम्हें नहीं मिला what you are grateful for. Fine. What's your name? हाँ. Kartik Sharma. Round of applause for him. Actually, कि मुझे नहीं आया. Honest, very good. अलग से हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर. ठीक है? कार्तिक. ठीक है. Okay. Nothing to laugh about it. It's good. I'm happy कि उसने हिम्मत तो की बोलने के लिए. आधे लोग तो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं. Anyone who would like to share what they felt grateful for? Otherwise मैं तो किसी को बुला दूँ. कोई अपने से आना चाहता है? यार हिम्मत दिखाओ. कोई भी? Anyone? Come. Very good. Very good. What's your name? प्रथम. अरे प्रथम के लिए और थोड़ी सी जोर से ताली बजाओ. Mom, dad, food, water, house. Very good. देखा, gratefulness express करना is इतनी बड़ी बात नहीं है. घर है, खाने को मिलता है, पानी मिल रहा है पीने को, धूप में तो नहीं खड़े हो बाहर गर्मी में, अभी के लिए, अभी एसी में बैठे हो ना, grateful for that. राइट. ये अगर ग्रेटफुलनेस का आपने अगर प्रैक्टिस शुरू कर दिया ना, जो ये पूरा टॉपिक है पर्सनल एजिलिटी एंड रेजिलियंस, आधी चीजें ना वहीं पे ही सॉल्व हो जाएंगी. क्योंकि यू हैव सो मच टू फील ग्रेटफुल फॉर. इतना कुछ है मेरी जिंदगी में अच्छा, एक आध छोटा अगर कुछ खराब भी हो रहा है की फर्क पैदा. आई बात समझ में? और ये ग्रेटफुलनेस का प्रैक्टिस कब करना है पता है? सुबह उठते ही इट सेज साइंटिफिकली सेज कि योर सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा काम करता है. इफ यू नो हाउ टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड ना, जिंदगी बहुत आसान है. द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी. अगर कोई बुक पढ़ता है तो प्लीज पढ़ लेना उसको. ठीक है? सुबह उठने के बाद एक या दो चीज, जस्ट बी ग्रेटफुल. और सोने से जस्ट पहले 2-3 चीज दिन में ये अच्छा हुआ, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. आज दिन में किसी से डांट नहीं सुनी, बड़े अच्छे से दिन कट गया, बी ग्रेटफुल. राइट? छोटी सी चीज है ना? ये दोनों टाइम में सुबह मॉर्निंग उठना और सोने से पहले जो सबकॉन्शियस माइंड है सबसे ज्यादा इफेक्टिव. अगर वो कर पाए ना, नथिंग लाइक. डन? ग्रेट. गाना पसंद है सबको? गाना और नाचना किसको पसंद है? पसंद है? मुस्कान को पसंद है भाई. मुस्कान के लिए गाना बजाता है.
समझ में आया? पक्का? Did I did a little justify to the topic that was given? Yes. पक्का? आप एक बार ताली बजा दो. स्वाति मैम. A special round of applause to Swati ma'am. Thank you. Thank you so much. She was someone who had actually faced the situation that I went through in her own family. So she was the one of those who was throughout there with me throughout my journey. बात नहीं होती थी हमारी बहुत. WhatsApp message एक ना, that also plays a big role, right? First and foremost, we express our deepest gratitude to our esteemed speaker who shared their valuable insights and knowledge with us today. Your expertise and passion have truly enriched our understanding of personal agility and resilience in an ambiguous world. Your dedication to helping others grow and thrive is commendable, and we are grateful for the transformative sessions you conducted. We would also like to extend our appreciation to our college, the mentoring cell, the Meraki cell, admin sir for all the back support, and the IT team for the unwavering support in the event. Your commitment in nurturing students' well-being and personal growth has been instrumental in making this event a resounding success. We would also like to thank our faculty members, students and participants who attended this event. Your presence and active engagement has contributed to the vibrant atmosphere and fruitful discussion that took place throughout the day. Your enthusiasm and thirst for knowledge have made this event a memorable one. Actually, a round of applause to the audience. You had all been a wonderful audience. Last but not the least, our heartfelt thanks goes to the organizing committee, volunteers and support staff who work tirelessly behind the scenes to ensure the smooth execution of this event. As we conclude this event, let us carry the learnings and insight gained today with us, integrating personal agility and resilience in our lives as we navigate the challenge of our ambiguous world. Thank you so much and have a really great day ahead.